Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history, chapter 3rd, kinship, caste, and class. My dear student, in the starting of this chapter, we had studied about Mahabharat. Mahabharat. Why we call that Mahabharat is a dynamic text. Even we also discussed this topic in the last of this chapter. But the main story of Mahabharat we had studied in the starting of this class. My dear, without any hesitation, here I want to tell you that this chapter going to give us information about 1000 year history from 6th century BC to 6th century AD. In the second chapter, we studied the political and economic history of the early India. In this chapter, we will try to understand about that social condition, society of the early India from 6th century BC to 6th century AD. And as you know that we studied also that the inscriptions, their limitation, the inscriptions had some limitations. Inscriptions was not able to give us information about the common society. But historian, when they think about that how the social practices was running on during that time, they did research. Even they will continuously do work on that topic. The common people, the common society, and their researches, their work give the very fruitful result. Nowadays we have a lot of information about the common society during early India. What were their practices, which type of occupation, social norms, rituals and customs which was done by the common people. These are all information historian try to collect. The social norms, as far as the matter of social norms and as far as the matter of the information regarding the society of the early India, we have to based on the literal evidence like Mahabharat, like Ramayana, like Puran, like Buddhism and Jainism text. These texts gives us a lot of information. On the basis of that, historian collect the information and they try to explain the early Indian society. The second topic, 2.2, I was discussed with you in my previous video, the idea of paterlineage. Before start this class, I would like to tell you about the some information regarding ideal paterlineage. My dear, the early Indian society, it was based on the paterlineage system, and paterlineage system was very famous, especially in the royal class family. My dear, Mahabharata is a very good story which gives us information about paterlineage. The definition of paterlineage also discussed by me in our previous class, that paterlineage means tracing descent from father to son, grandson and so on. Same matrilineage is the term used by descent to trace through the mothers. So in Mahajanpada periods, it was very famous.
Ultimately, the conflicts ended in the battle Mahabharata, the story of the two cousins Pandava and Kauravas. What happened? The conflict ended in the battle in which the Pandava emerged victorious. After that, the Patalini succession was proclaimed. While Patalini had exercised prior to composition of the epic, the central story of the Mahabharata reinforced the idea that was the valuable under the Patalini. Having read the story of Mahabharata, you can easily understand about that meaning of Patalini. The exact definition of the Patalini, we can say that son could claim the resources of their father when the latter died. My dear, claim the resources including the throne in the case of king also. Father when they later died. Most ruling dynasties, 6th century BC onwards, claimed to follow this system, although there were the variation in the practices. Sometimes there were no sons. In that condition, in some situation, brother succeeded another. Sometimes other kinsmen claimed the throne, and in many exceptional circumstances, women such as Prabhavati Gupta exercised power. The concern with the Patalini was not unique to ruling families. It is evident in the mantra, in the ritual text such as the Rig Veda. It is possible that these attitudes were shared by wealth men and those who claimed high status, including Brahmins. My dear, the patterning system that was not introduced during Mahakavya period, Mahakavya Kal, epic era. Before epic era, if you will minutely observe about the Rig Veda, you can easily found some examples where prove that the patterning system was very famous during Vedic and later Vedic era. दोनों कालों में ये व्यवस्था काफी प्रसिद्ध थी. The concern with the Patalini was not unique ruling families. It is evident in the mantra, in the ritual texts such as the Rig Veda. It is possible that these attitudes were shared by the wealthy men and those who claimed high status, including Brahmins. My dear, if you will read the source 1, producing fine son, you can easily understand that the system Patalini was certainly not practices in society, early society. It was before running on in society, which this information gives us Rig Veda. If you will read the source 1 where they clearly explain about the Patalini system and the importance of son, fine son, producing son. Here is an export of mantra from the Rig Veda, which was probably entrusted in the text 1000 BC to be chanted by the priest while conducting the marriage rituals. It is used in the many Hindu weddings even today also. I free her from here, but not from there. I have bound her family there, so that though the grace of Indra
She will have fine son and be fortunate in her husband's love. Indra was one of the principal deities, a god of valor, warfare, and rain. Here and there refer to fathers, husbands, houses respectively. My dear, एक अच्छा सा इंफॉर्मेशन आपको ऋग्वेद से दिया गया है। उत्तम पुत्रों के प्राप्ति के लिए एक मंत्र की बात की गई है। ऋग्वेद में एक मंत्र उद्धृत है, ऋग्वेद में एक मंत्र दिया गया है जो लगभग 1000 BC के आसपास कंपाइल किया गया होगा। उसमें विवाह संस्कार के दौरान एक मंत्र की बात करती है जो पुरोहित पढ़ता है, और आज भी वो मंत्र हिंदू विवाहों में, हिंदू धर्म के वैवाहिक संस्कारों में पुरोहित के द्वारा आज भी वो पढ़ा जाता है। उस मंत्र में पुरोहित कहता है कि मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ किंतु वहाँ से नहीं। यहाँ और वहाँ से तात्पर्य पिता और पति के घर से है। मैं यहाँ से मुक्त करता हूँ मतलब पिता के घर से मुक्त करता हूँ, मगर वहाँ से नहीं, इट मीन्स पति के घर से नहीं। मैंने इसे वहाँ मजबूती से स्थापित किया है जिससे इंद्र के अनुग्रह से, उनकी कृपा से उसके उत्तम पुत्र हों और पति के प्रेम का सौभाग्य उसे प्राप्त हो। इस मंत्र में ये बात की गई है कि पति से उस जो लड़की है, जो उसकी पत्नी है, उसको अच्छे पुत्र उत्पन्न हो और पति का उसको प्यार मिले। इस मंत्र में उसकी बात विस्तार से की गई है। अब ये ऋग्वेद का ये श्लोक सिद्ध करता है कि पैटर्नलिटी सिस्टम पहले से ही प्रैक्टिस में थी महाभारत के आने के पहले। अब अगर सोर्स 2 आप देखें तो सोर्स 2 में पूरे महाभारत की लड़ाई को एक्सप्लेन किया है। संस्कृत के आदि पर्व से, संस्कृत में लिखा गया महाभारत, उसका एक चैप्टर आदि पर्व, प्रथम अध्याय है आदि पर्व, और कौरव और पांडवों के बीच संघर्ष का चित्रण करता है, बताता है। आदि पर्व में कौरव और पांडवों के बीच का जो युद्ध हुआ उसको बताने का प्रयास करता है। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव उनके बंधु बांधव थे। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, ब्लाइंड थे, उनके अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए। किंतु पांडु की असामयिक मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने। चूंकि सभी राजकुमार अल्पवयस्क थे, जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए, हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लगे। हस्तिनापुर के जो लोग थे वो कौरवों की तुलना में पांडव, इट मीन्स धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांडु के पुत्रों से अधिक स्नेह रखने लगे, क्योंकि वे कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी थे। इस बात से कौरव में ज्येष्ठ दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या हुई। वो अपने पिता के पास गया और बोला कि हे राजन, हे पिता, अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था। आप अंधे थे, इसलिए आपको राजा नहीं बनाया जा सकता था, परंतु फिर भी ये राज्य सिंहासन आपको प्राप्त हो गया। और यदि पांडु से ये विरासत प्राप्त करते हैं तो उनके बाद उनके पुत्र और पौत्र, फिर प्रपौत्र, ये पैटर्नल प्रॉपर्टी के अधिकारी हो जाएंगे, और हम तथा हमारे पुत्र इस राज्य के उत्तराधिकार से बेदखल होकर संसार में क्षुद्र समझे जाएंगे, छोटे समझे जाएंगे। इसलिए तो इस प्रकार धृतराष्ट्र से दुर्योधन ने अपनी बात रखी और उसने कहा कि हे पिता, अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था, हालांकि आपको यह प्राप्त हो गया है। तो यदि पांडु से यह विरासत प्राप्त करते
तो उनके बाद उनके पुत्र, उनके पौत्र, इट मीन्स उसका सन, ग्रैंडसन, उनके पैटर्नल प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी हो जाएंगे, और हम और हमारे पुत्र इसमें उत्तराधिकारी नहीं होंगे। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि अब यहाँ पे एक क्लियर व्यू जाता है कि ये अक्षरशः सत्य सिद्ध होता है कि किस तरीके से पैटर्लिनी सिस्टम की बात, और उसी के थ्रू दुर्योधन अपनी बात अपने फादर को समझाता है कि इस तरह के उद्धरण अक्षरशः सत्य न भी हों तो भी वो इस बात का अनुमान करा देते हैं कि जिन लोगों ने यह ग्रंथ लिखा वो क्या सोचते थे, और कभी कभी जैसे जैसे यह प्रकरण परस्पर विरोधी विचारधाराओं के बीच उत्पन्न हुआ तो लोगों ने, इतिहासकारों ने ये मत दिया कि प्राचीनतम जो भारतीय इतिहास है उसमें प्रतीकात्मक व्यवस्था ही उसका मूल थी। इस तरह से हम महाभारत के आदि पर्व, जो कि प्रथम चैप्टर है महाभारत का, उसके आधार पे हम लोगों ने महाभारत के मेन स्टोरी को समझने का प्रयास किया। आदि पर्वन, लिटरली द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द संस्कृत महाभारत, डिस्क्राइबिंग द वाइड कॉन्फ्लिक्ट्स अक्रॉस अमॉन्ग द कौरव एंड पांडव। सो आई थिंक यू आर इजली अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रूल्स ऑफ मैरिज। रूल्स ऑफ मैरिज, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग and important also. First, we have to think about that the type of marriage. The type of marriage here in the bracket clearly explain the endogamy, exogamy, polygamy or polyandry. What is meaning of endogamy? Endogamy refer to marriage within a unit. This could be kin group, caste और ए ग्रुप लिविंग इन द सेम ऑफ लोकेलिटी। अर्थात इंडोगेमी या अंतर्विवाह वह विवाह है जिसमें वैवाहिक संबंध समूह के मध्य में ही होते हैं। यह समूह एक ही गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले का हो सकता है। अर्थात इंडोगेमी का मतलब ये हुआ कि इंडोगेमी में शादियाँ सेम गोत्र में, एक ही गोत्र के अंदर, एक ही जाति के अंदर या एक स्थान पर रहने वाले ग्रुप के अंदर के लोगों में की जाती थी, जिसको इंडोगेमी कहते हैं। एक्सोगेमी, एक्सोगेमी रेफर टू मैरिज आउटसाइड द यूनिट। एक्सोगेमी का मतलब हुआ कि आप विवाह गोत्र से बाहर कर सकते हैं, इसे बहिर्विवाह कहते हैं, गोत्र से बाहर हट के शादी करना। तीसरा, पोलीगैनी इज द प्रैक्टिस ऑफ मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स। पोलीगैनी का मतलब हुआ बहुपत्नी प्रथा, एक पुरुष की अनेक पत्नियां, और ये व्यवस्था समाज में जब प्रचलित हो तो इस तरह की व्यवस्था को हम पोलीगैनी कहते हैं। पोलीएंड्री, same just opposite. Polyandry, it means the women's having several husband, the women having several husband, that type of marriage is called polyandry. The man having several wives, this type of marriage called polygamy. Marriage outside the unit, this type of marriage called exogamy. But the marriage that would be within a unit, this could be kin group, caste or group living in the same locality, this type of marriage called endogamy. तो ये चार तरह के विवाह हैं। अगर आप सोर्स 3 को देखें, let us try to understand the source 3. Source 3, 8 forms of marriage where clear author
want to introduce you about the 8 type of marriage. Here the first, fourth, fifth and sixth form of marriage from the मनुस्मृति. मनुस्मृति में विवाह के जो पहला, चौथा, पांचवा और छठा विवाह के प्रकार है उनको यहाँ पे बताया जा रहा है. मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है. मनुस्मृति के 8 प्रकार के विवाहों में कहा गया है कि ब्रह्मदैव तथा आर्ष, प्रजापत्य तथा सुरो, गांधर्वौ राक्षसौ च पैशाचाष्टकमो मतः. अर्थात ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, ये 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मनुस्मृति में करता है. और यहाँ पे वो सिर्फ 4 प्रकार के विवाहों की बात कर रहा है. इन 4 प्रकार के विवाहों में अगर आप देखें तो फिर फर्स्ट कहता है द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर आफ्टर द ड्रेसिंग हर इन ए कॉस्टली क्लोथ्स एंड ऑनरिंग हर विथ ए present of jewels to a man learned in the Veda whom the father himself invites. ये विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता है. आच्छाद्य चार चयित्वा च श्रुतिशीलवती स्वयं आहूय कन्यादानम ब्राह्मो धर्म प्रकृतिता. मतलब कि पिता एक सुयोग्य वर की तलाश करके, एक अच्छे वर की तलाश करके अपनी पत्नी को अलंकरणों से सुशोभित करके उसके साथ शादी करता है. फोर्थ, द गिफ्ट ऑफ द डॉटर बाय द फादर आफ्टर ही हैज एड्रेस द कपल विद द नेक्स्ट टेक्स्ट मे बोथ ऑफ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज टुगेदर एंड हैज सोन ऑनर टू ब्राइडग्रूम. ये प्रजापत्य विवाह है. प्रजापत्य विवाह में पिता अपनी पुत्री को आभूषणों से सुसज्जित करता है, उसको ढेर सारा गिफ्ट देता है और ये आशीर्वाद देता है कि तुम जाओ, तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो. तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान देता है. फिफ्थ, व्हेन द ब्राइड ग्रूम्स रिसीव अ maiden after having given as much wealth as can afford to the kinsman and to the bride herself according to his own will. फिफ्थ, 5वें प्रकार के विवाह है. वर को वधु की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता व इच्छा अनुसार उसके बांधवों और स्वयं वधु को यथेष्ट धन प्रदान करता है. ये असुर विवाह है 5वां. जब कन्या का धन दे करके कन्या को खरीदा जाए, कन्या मूल्य दे करके लड़की को प्राप्त किया जाए, तो इस प्रकार का विवाह ये असुर विवाह कहलाता है. और 6 प्रकार का विवाह है द वॉलेंट्री यूनियन ऑफ द मैरिड एंड हर लवर विच स्प्रिंग फ्रॉम डिज़ायर. इसको गंधर्व विवाह कहते हैं. इसमें स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग और जिसकी उत्पत्ति काम से होती है, इस प्रकार का विवाह गंधर्व विवाह है. और ये 4 प्रकार के विवाहों का उल्लेख आपके रूप में करता है. अब आइए आपके टॉपिक पे चलते हैं. लेट अस कम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक. बट व्हाई आई एम टेलिंग अबाउट दीज द टाइप्स ऑफ मैरिज? बिकॉज द वेरियस टाइम in your board exam, I mean to say that when you will face your board exam, this question may be possible कि आपके एग्जाम में आ जाए, तो आप आसानी से मैरिज सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ मैरिज को बता सकते हैं. एंडोगेमी, एक्सोगेमी, पॉलीएंड्री, पॉलीगैनी. और फिर मनुस्मृति में जो विवाह के प्रकार हैं, 8 प्रकार के विवाहों में से 4 प्रकार के विवाहों का जो उल्लेख है उनका आप आसानी से वर्णन कर सकते हैं. अब आइए विवाह के नियम को देखते हैं. 2.3 रूल्स ऑफ मैरिज. कैसे शादियाँ होती थी, उसके लिए क्या रूल्स थे. वाइल सन वर इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्री, while some were important for the continuity of the patrilineage, daughters were viewed rather differently within this framework. They had no claims to the resource of the household. At the same time,
Marrying them into families outside the kin was considered, described this system called exogamy. Literally, marrying outside meant that the slaves of young girl and women belonging to families that claim high status were often carefully regulated to ensure that they were married at the right time and to the right person. This gave rise to belief that the Kanyadan or the gift of the daughter in a marriage was important religious duty of the father. कहता है कि जहाँ पैटर्निटी सिस्टम है, नो डाउट उसमें पुत्रों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वहाँ उस व्यवस्था में, पैटर्निटी सिस्टम में, पुत्रियों को पुत्रों की तुलना में एक अलग तरीके से व्यवहार उनके साथ किया जाता है। पैतृक संसाधनों पर, पैटर्नल जो प्रॉपर्टी है उन पे विमेंस का कोई अधिकार नहीं। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही पिता का प्रमुख कर्तव्य था और इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते थे। इट मीन्स कि द सिस्टम कॉल्ड एक्सोगैमी, लिटरली मैरिंग आउटसाइड, meant that the lives of the young girl and women belonging to families that claimed high status were often carefully regulated to ensure that they were married at the right time and the right person. Right time and the right person, that is the very important. ये लड़कियों की शादी अपने गोत्र से बाहर बहिर्विवाह पद्धति के अनुसार करने की एक परंपरा थी और ये ध्यान दिया जाता था कि शादी ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं पर स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिस पर उचित समय उचित व्यक्ति से उसका विवाह हो, इसका विशेष ध्यान दिया जाता था। इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। अब नए नगरों का उद्भव हुआ, सामाजिक जीवन और अधिक जटिल हुआ। यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे। वस्तुओं की खरीद फरोख्त के साथ साथ नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान होता था। संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। इस चुनौती में के जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार्य संहिताएं तैयार की, नियम बने, समाज के कानून बनाए गए। ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 5th सेंचुरी BC से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिसको लिखने का काम, जिसके संकलन का काम लगभग 2nd सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी AD के बीच हुआ। That is very important things. That's why I am telling you that the role of the Dharmashastra and Dharmasmriti is very important for the common people. With the emergence of the new towns, social life became more complex. People from near and far met to buy and sell their products and share ideas in the urban milieu. This may have led questioning of earlier belief and practices faced with the challenge. The Brahmins responded by laying down codes of social behavior in great details. These were meant to be followed by Brahmins in the particular and the rest of the social in the general form of the 5th century BC. These norms were compiled in Sanskrit texts known as the Dharma Sutra and Dharma Shastra. The most important of the such work, the Manusmriti, was compiled between the 2nd century BC to 2nd century AD. While the Brahmins, authors of these texts, claimed that their point of view had universal validity and that what they prescribed had to be obeyed by everybody, it is likely that real social relations were more complicated besides given the religious diversity, while the subcontinent and the difficulties of the communication. The influence of Brahmins was by no means all
the pervasive. What is the interesting is that Dharma Sutra and Dharma Shastra recognizing many as 8 forms of marriage. Of these, the first 4 were considered as a good, while the remaining were condemned. It is possible that these were practiced by those who did not accept Brahmanical norms. कहता है कि हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का यह मानना था कि उनकी दृष्टि सार्वभौमिक है और उनके द्वारा बनाए गए नियम सबके द्वारा पालन होना चाहिए, किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे। इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय विभिन्नता और संचार की बाधाओं की वजह से ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं, 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख करते हैं, लेकिन इनमें से 4 उत्तम माने जाते हैं और बाकियों को निंदनीय माना गया है। संभव है ये विवाह पद्धतियाँ उन लोगों में प्रचलित थे जो ब्राह्मणी नियमों को अस्वीकार करते थे। माय डियर, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ तक इस टॉपिक को आई थिंक आप लोगों ने आसानी से समझ लिया होगा। वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।